تخمینہ لگایا گیا۔ IMF نے کہا کہ اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال بے روزگاری کی شرح 8.5% تھی۔ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.8% رہے گا۔ عالمی سطح پر کورونا وبا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات برقرار ہیں۔ IMF نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 2028 تک 5% تک جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا ہے جانے کا GDP گروتھ کا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.8% رہے گا۔ IMF کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال بے روزگاری کی شرح 8.5% تھی۔ 0.5% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح میں کمی آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.8% رہے گا۔ عالمی سطح پر کورونا وبا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات بھی برقرار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سرگرم لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں یونین کونسلز کے عہدیداروں اور کارکنان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اسی حوالے سے اپڈیٹ آپ کو کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سرگرم ہے۔ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے مزید جانتے ہیں۔ جی عمر۔ جی، لاہور میں مسلم لیگ نون کی جو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز ہیں وہ کارکنوں کو متحرک کر رہی ہیں، اور جو مختلف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں ان سے آگے یونین کونسلز کے جو عہدیدار اور کارکن ہیں ان کو ماڈل ٹاؤن بلایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو ٹاسک فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت مریم نواز شریف کی لاہور کے حلقہ N133 اور N127 کی جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں اور کارکنان، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات کے اندر متعلقہ حلقوں سے جو ارکان اسمبلی ہیں، جس طرح ارکان قومی اسمبلی میں شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں اور علی پرویز ملک، وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سابق ارکان صوبائی اسمبلی رمضان صدیق بھٹی، میاں محمد سلیم، چوری شہباز اور خواجہ عمران نذیر بھی اس اجلاس کے اندر شریک ہیں۔ اور ان سب کو جو مین ٹاسک ہے وہ 21 اکتوبر کو کس طریقے سے ہر یونین کونسل سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو موبلائز کر کے کس طریقے سے مینار پاکستان کے اوپر پہنچنا ہے اور ایک بڑا اجتماع تشکیل دینا ہے، اس حوالے سے مریم نواز خود جو ہے ان انتظامات کو دیکھ رہی ہیں، اور ماڈل ٹاؤن میں مسلسل جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عمر۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ کہا 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان لینڈ کریں گے۔ نئے پاکستان سے لوگوں کی جان چھوٹی، ہم پرانے پاکستان کو ہی ریپیئر کر کے دنیا کا مضبوط ترین ملک بنائیں گے۔ کہا امید کرتے ہیں کہ عوام ایک مرتبہ پھر نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرے گی۔ عابد شیر علی کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی کا ایک نیا آغاز ہوگا، نئے سویرے کا آغاز ہوگا۔ نئے پاکستان سے لوگوں کی جان چھوٹی، ہم پرانے ہی پاکستان کو ریپیئر کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو دنیا کا مضبوط ترین خطہ بنائیں۔ آگے بھی پاکستان کی عوام نے نواز شریف کو پر اعتماد کا اظہار کیا، ہم امید کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرے گی اور ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ PTI نے لبرٹی چوک لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست ایڈیشنل سیکریٹری PTI پنجاب عظیم اللہ خان نے دائر کی۔ درخواست میں ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں عنقریب عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ PTI نے الیکشن کے لیے اپنے منشور کا اعلان کے لیے جلسے کا انعقاد کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر ذمہ داران کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی۔ درخواست میں کہا گیا لبرٹی چوک لاہور میں 15 اکتوبر کے جلسے کے لیے PTI کو اجازت نہیں دی گئی۔ اجازت نہ ملنے سے جلسے کے انتظامات کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کے لیے آئین ہر سیاسی جماعت کو عوامی رابطے کی اجازت دیتا ہے۔ استدعا ہے عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور کو PTI کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سماعت کر رہا ہے۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی کے از خود نوٹس اختیار سے متعلق اہم ریمارک۔ کہا آرٹیکل 191 کی لینگویج سبجیکٹ ٹو لا سے شروع ہوتی ہے، کیا ان الفاظ سے پروسیجر میں بہتری کی گنجائش چھوڑی گئی؟
आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। MQM के वकील ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की। फैसल सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अल्फाज की तारीफ का अलग से सेक्शन है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं है? In certain category of cases would not make the law unconstitutional. They may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because kisi ko right milega, kisi ko right nahi milega. Again the question will be, ye kaise decide hoga? Again we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that, because Parliament has said appeal honi chahiye, aur appeal honi chahiye ka matlab hai that every order of the Supreme बुशरा बीबी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए गए। खदशा है कि शौहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने कहा है कि मेरे शौहर को जेल में घर का खाना फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अडियाला जेल में कैदियों की तादाद के बायस चेयरमैन PTI की नक़्ल हरकत भी महदूद है। चेयरमैन PTI से बेटों के टेलीफोन पर बात करवाने का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का बात करवाने से इनकार। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतालिक 18 अक्टूबर तक जेल SOPs तलब कर लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने केस की समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरूनी मुल्क बात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतालिक जेल SOPs तलब करते हुए केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार खालिद महमूद खान के वकील ने पेश होकर PTI चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तिफसार किया कि अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। इस पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। कमीशन ने इस्तिफसार किया कि नवाज शरीफ और उसके केस में क्या फर्क है। इस पर वकील ने बताया कि नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने और ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया। इलेक्शन कमीशन में PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी के वकील पेश हुए और इस्तदा की कि PTI को बल्ले का निशान न दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस निशान से मुताल्लिक केस से इल्तवा है, हमारी दरख्वास्त को इस केस से मुंसलिक कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ जाली डिग्री केस है। हायर एजुकेशन कमीशन का जवाब मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज एजाज राव ने जाली डिग्री केस की समाअत की। खालिद खुर्शीद के मुआवन वकील हसीब हसन जबकि हायर एजुकेशन कमीशन के वकील बिनियामीन अब्बासी अदालत में पेश हुए। HEC वकील ने खालिद खुर्शीद की दायर करदा शिकायत का जवाब जमा करवा दिया। HEC ने खालिद खुर्शीद की गैर मुल्की डिग्री के लिए जारी करदा लेटर ऑफ इक्विवेलेंसी वापस ले लिया था। सिविल जज एजाज राव ने जवाब मंजूर करते हुए केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
एहतसाब अदालत की स्पीकर सिंध असम्बली को आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुताल्लिक़ रेफरेंस में आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने रेफरेंस की मजीद समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी दीगर आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतालिक रेफरेंस की समात हुई। वकला की अदम पेशी के बायस अदालत ने समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर वकला और मुलजिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी ने कहा, मेरे खिलाफ अफगान तारकीन वतन की सपोर्ट का इल्जाम बेबुनियाद है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक जारी कर दी। पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह-ए-नमू 2.5% रहने की पेशगोई। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहने का इम्कान है, जबकि आलमी मालियाती फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना लगाया गया। IMF ने कहा कि इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। इस साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार हैं। IMF ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की 2028 तक 5% तक जो है वो तखमीना लगाया गया है जाने का GDP ग्रोथ का, जबकि इसके साथ साथ ये कहा गया है कि करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। IMF की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। 0.5% जो है वो बेरोजगारी की शरह में कमी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात भी बरकरार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ सरगर्म लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों और कारकुनान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मजीद इसी हवाले से अपडेट आपको करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सरगर्म है। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से मजीद जानते हैं। जी उमर। जी, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज हैं, वो कारकुनों को मुतहरिक कर रही हैं और जो मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं उनसे आगे यूनियन काउंसिल्स के जो अहदेदार और कारकुन हैं उनको मॉडल टाउन बुलाया जा रहा है और उनके साथ मुलाकातें करके उनको टास्क फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ की लाहौर के हल्का N133 और N127 की जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं और कारकुनान, उनके साथ मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात के अंदर मुतल्लिका हल्कों से जो अरकान असम्बली हैं, जिस तरह अरकान कौमी असम्बली में शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हैं और अली परवेज मलिक, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा साबिक अरकान सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी, मियां मोहम्मद सलीम, चौधरी शहबाज और ख्वाजा इमरान नजीर भी इस इजलास के अंदर शरीक हैं। और इन सब को जो मेन टास्क है वो 21 अक्टूबर को किस तरीके से हर यूनियन काउंसिल से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मोबिलाइज करके किस तरीके से मीनार पाकिस्तान के ऊपर पहुंचना है और एक बड़ा इज्तिमा तश्कील देना है। और उस हवाले से मरियम नवाज खुद जो है इन इंतजामात को देख रही हैं और मॉडल टाउन में मुसलसल जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। सही, बहुत शुक्रिया उमर। अक्सा की तो हमास के इसराइल पर हमलों के बाद जंग में शिद्दत आ गई। इसराइली फौज की जानिब से तारीखी बमबारी, हर तरफ तबाही। सेहूनी फौज के मुहासरे से गजा में खुराक और अद्वियात की सप्लाई बंद। कतर ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी। अरब लीग के वज़रा ख़ारजा का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा है। इस बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमास की कार्रवाई के बाद इसराइल ने गजा पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। इसराइली फौज ने एतराफ किया कि गजा की तारीख की बदतरीन बमबारी की जा रही है। इसराइली बमबारी से गजा में हर तरफ तबाही, धुआं और गर्दो गुबार के बादल छाए हुए हैं। जबालिया में पनाहगज़ीनों के कैंपों को भी निशाना बनाया। गजा पर दर्जनों रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, जबकि 1000 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली ऑपरेशन से 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। स्कूलों में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 1 लाख तक जा पहुंची और इसराइल स्कूलों को भी निशाना बना रहा है।
बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 के करीब जा पहुंची, जबकि 3000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास के हमलों से 900 इसराइली हलाक हुए, जबकि 1000 से जायद इसराइली हमास की कैद में हैं। जंग की मौजूदा सूरत हाल से आलमी बरादरी में परेशानी की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा और कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक ने जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अरब लीग ने भी वज़ीर ख़ारजा का इजलास कल तलब कर लिया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा में जानबूझकर अस्पतालों और एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद, जबकि बैत हुनून अस्पताल तबाह हो गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली वज़ीर दिफा के गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बयान को काबिल नफरत करार देते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में आबादी को खुराक से महरूम करना इज्तिमाई सजा है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा के मुकम्मल मुहासरे से परेशान हूँ। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, जायज़ हुकूक और देर पा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ हैं। हमें फलस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाने की जरूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी जंगबंदी के लिए इसराइली हम मनसब और फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से रब्ता किया है। आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से फलस्तीनियों की इमदाद मुअत्तल करने के यूरोपीय यूनियन के फैसले को मुस्तरद करते हुए वजाहत तलब कर ली है। फलस्तीन और इसराइल जंग के हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीकी फौज इसराइल के साथ किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होगी। मशरिक वस्ता में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस हद तक नहीं जाएंगे कि जिससे खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचे। फलस्तीन इसराइल जंग के आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। 2 रोज़ा जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खान अक्सा की हमास के इसराइल पर हमलों के बाद जंग में शिद्दत आ गई। इसराइली फौज की जानिब से तारीखी बमबारी, हर तरफ तबाही। सेहूनी फौज के मुहासरे से गजा में खुराक और अद्वियात की सप्लाई बंद। कतर ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा है। इस बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमास की कार्रवाई के बाद इसराइल ने गजा पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। इसराइली फौज ने एतराफ किया कि गजा की तारीख की बदतरीन बमबारी की जा रही है। इसराइली बमबारी से गजा में हर तरफ तबाही, धुआं और गर्दो गुबार के बादल छाए हुए हैं। जबालिया में पनाहगुज़ीनों के कैंपों को भी निशाना बनाया। गजा पर दर्जनों रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, जबकि 1000 से जायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली ऑपरेशन से 1.5 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो गए। स्कूलों में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 1 लाख तक जा पहुंची और इसराइल स्कूलों को भी निशाना बना रहा है। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 के करीब जा पहुंची, जबकि 3000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास के हमलों से 900 इसराइली हलाक हुए, जबकि 1000 से जायद इसराइली हमास की कैद में हैं। जंग की मौजूदा सूरत हाल से आलमी